Hey, so good evening, everyone. My name is More Hanspal, and in this session, we're going to talk upon the dividend policies. Okay, so give me a minute. Yeah, so particularly when we talk about dividend policies, let me first write here dividend policies. Yeah, so when we talk about the dividend policies, there is a lot more kind of discussion and kind of talk among the people that how much dividend a company must pay, right? Or how much dividend the company must pay, or when the company should pay dividends, or the company should pay dividends or not. So all these kind of discussions they keep on going in the market. So how to decide that how much dividend to pay, or what should be the optimal payout ratio like for a company? Okay. So all these talks are like basically going on in the market. And like particularly like when we talk about the dividend policies, a large number of models have also come up in the market, talking about the Graham Dodd model, talking about the Walter model, Gordon model, model. So all these models like we'll be talking about in subsequent sessions. But like none of the models was able to give a significant theory or a significant conclusion that how much dividend should be paid, at what time the dividend must be paid, how many times the dividend must be paid. Because there are certain companies who pay dividends. There are certain companies who do not pay dividends at all. Like there are some companies who pay dividends only on the basis of their earnings. तो कभी कभार लाइक कंपनी साल में दो बार ही अपना मतलब कि डिविडेंड डिक्लेयर मतलब कि कर देती हैं. Sometimes they kind of declare it in the middle of the year, like which is called an interim dividend. Interim. And then they give the final dividend at the end of the year. End of the year नहीं मतलब कि final dividend means मान लो जो कंपनी ने जो लास्ट डिविडेंड दिया एंड इसके बाद कंपनी उस पर्टिकुलर ईयर में और डिविडेंड नहीं देगी. Okay, and the interim dividend में क्या होता है, like there is a hope that the company would pay the final dividend also. Okay, so ideally like people have said that the dividend policy or the payout ratio should be as such which should maximize the market value of the share. कि अब dividend उतना दो that should maximize the market value of the share, कि market share price बढ़ना चाहिए. Okay, but again, if the dividend is being paid, agreed the market price would rise at some point of time, but the market price would also come down. कैसे? अगर आपने डिविडेंड पे करा है तो there would be certain adjustments in the stock price as well. क्या आपने मान लो कि डिविडेंड पे करा है, ठीक है. अब हम इस पे बात करेंगे वो एडजस्टमेंट्स क्या होती हैं, क्यों होती हैं. सो बेसिकली व्हेन वी टॉक अबाउट डिविडेंड, इट इज गिवन आउट ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी. अगर कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है तो आइडियली अगर कंपनी को ज्यादा प्रॉफिट है the company would be transferring the profit into like reserves and all that, but ideally the main concern is profit के base पे company अपने dividend देती है. And that profit is divided into two parts. One is the retained earnings. One is the retained earnings and the other part is your dividend. एक retained earnings है and दूसरा part है dividend का. अब ideally there is no specific ratio that how much should be given as retained earnings, how much should be given as dividend. Some people say like give it as 1:1. अगर 1:1 तो manage कर सकते हो तुम दो. Because there are some companies who pay a stable dividend, like no matter what. कंपनी को चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, कंपनी कुछ कर रही हो या कुछ ना कर रही हो. Okay, those companies pay a stable dividend or a fixed dividend. एंड डिविडेंड हमेशा कंपनी की फेस वैल्यू पर दिया जाता है. इस चीज को याद रखना, हमेशा फेस वैल्यू पे. अगर मान लो कंपनी का अभी करंट प्राइस इज गोइंग ऑन एट लाइक 1,000 रुपीज and company declares a 10% dividend, that 10% won't be paid on 1,000 rupees. ठीक है, तुमको 100 रुपए नहीं मिलेंगे. That 10% would be of the face value and face value can be just 10 rupees. तो तुमको सिर्फ 1 रुपए ही मिलेंगे. ठीक है. The one thing which people are confused about and many are confused about that how is dividend paid.
Is dividend paid on the face value of the share or the current market price of the share? So to avoid your confusion, the dividend is paid on the face value of the share and not the current market value of the share, and that you should know very clear. So talking about the optimal dividend ratio, some companies say कि retained earnings and dividend में ideally like there should be like मतलब कि 1:1 का रेशियो होना चाहिए कि 50% आप retained earnings देख रहे हैं, 50% आप dividend दे रहे हैं, ठीक है. बट पहली बात तो 1:1 को मैं रिमूव कर देता हूँ बिकॉज दे टीच यू, आई बिलीव इन टीचिंग यू द प्रैक्टिकल वे एंड नॉट इन द थ्योरेटिकल वे, ठीक है. इफ द कंपनी थिंक्स दैट द कंपनी हैज गुड प्रोजेक्ट्स इन फ्यूचर, if the company is going for further diversification expansion projects में कंपनी जा रही है, अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज बना रही है, मान लो द कंपनी इज into the business of automobiles and the company is expanding itself into EVs and all. कोई कंपनी है जो क्लीन एनर्जी के थ्रू जा रही है, या कोई भी मान लो कोई भी न्यू एमर्जिंग थी मार्केट में आ रहा है, ओके, एंड कंपनी उस पर इन्वेस्ट कर रही है, तो ऑब्वियसली द कंपनी वुड बी इन्वेस्टिंग अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी. तो दैट इज देयर, बहुत पैसा कंपनी लगा रही होगी. उस केस में कंपनी कैन come to a conclusion of paying zero dividend and keep 100% as retained earnings, because in that way that dividend would be compensated for the capital gains the share price of the company would have. क्योंकि अगर कंपनी का प्रोजेक्ट अच्छा है, अगर फाइनेंशियल एनालिस्ट एंड सबको लगता है कि उस प्रोजेक्ट से कंपनी को रिटर्न मिलेगा, देन ऑब्वियसली अगर कंपनी का शेयर उस टाइम मतलब कि 1000 चल रहा होगा, कंपनी का शेयर बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा एंड आगे के टाइम में द शेयर प्राइस वुड बी ऑन अ बूम, सो दैट डिविडेंड वुड बी कॉम्पनसेटेड. बिकॉज कंपनी अपना पैसा भी डिविडेंड में नहीं दे सकती, बिकॉज कंपनी अभी अपना सारा पैसा द कंपनी अपना लगा रही है फॉर एक्सपेंशन एंड डाइवर्सिफिकेशन में, ठीक है. बट अगर कंपनी को लग रहा है कि कंपनी के पास ऐसा कुछ फ्यूचर स्कोप नहीं है फॉर एक्सपेंशन एंड डाइवर्सिफिकेशन, द कंपनी कैन पे 100% एज डिविडेंड, बट इट इज अ ड्रॉबैक फॉर द कंपनी. इफ द कंपनी इज पेइंग 100% ऑफ द डिविडेंड, इंस्टेड ऑफ सैटिस्फाइंग द शेयर होल्डर्स और मेकिंग देम हैप्पी, शेयर प्राइस बहुत ज्यादा नीचे गिर जाएगा, एक्सेसिव नीचे गिर जाएगा. बिकॉज डिविडेंड के ऊपर तो मतलब कि थोड़े बहुत एडजस्टमेंट्स तो होती हैं, बट थोड़ी बहुत होती हैं, 5 रुपए 10 रुपए ज्यादा से ज्यादा, बट वो बहुत नीचे, एंड देयर वुड बी अ पेसिमिज्म इन द मार्केट फॉर दैट कंपनी. लोगों को लगेगा कि द कंपनी हैज नो फ्यूचर, द कंपनी इज नॉट थिंकिंग फॉर एक्सपेंशन और डाइवर्सिफिकेशन और एक्सपैंडिंग द कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कैपेबिलिटीज इन फ्यूचर. उस पर कंपनी काम ही नहीं कर रही. कंपनी को लग रहा है जो है सो है, सारा पैसा ले लो, एंड इन्वेस्टर्स को ये भी लग सकता है कि कंपनी शायद बंद भी हो जाए. एंड सेम थिंग हैपेंड विद द कंपनी ऑफ मेजिस्को. लाइक देयर वाज अ कंपनी मैजिस्को. सो मैजिस्को डिक्लेयर्ड अ डिविडेंड ऑफ 1940%. ठीक है, मैजिस्को ने 1940% का डिविडेंड डिक्लेयर करा, ठीक है. तो बहुत ज्यादा भी डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करना चाहिए, ठीक है. अब बहुत कंपनीज होती है तुम्हारी, मान लो कि पब्लिक सेक्टर कंपनीज आते हो, या बीपीसीएल, एचपीसीएल, एनटीपीसी, बहुत कंपनीज हैं. पीपल बाय दोज कंपनीज फॉर द पर्पस ऑफ डिविडेंड, बिकॉज ये कंपनीज बहुत डिविडेंड देती हैं, ओके. सो दैट इज द वन थिंग दैट यू शुड नो. तो सब कुछ रिटेन्ड अर्निंग्स भी तुम रख सकते हो, सब कुछ डिविडेंड भी रख सकते हो, एंड यू कैन हैव एन आइडियल कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ ऑफ देम एज वेल, राइट. सो इट बेसिकली इट डिपेंड्स अपॉन द सिनेरियो, ठीक है. अब मैं क्या बोल रहा था, जब हम डिविडेंड पे करते हैं तो आइडियली कंपनी का शेयर प्राइस इट गेट्स एडजस्टेड. जो कंपनी का शेयर प्राइस होता है थोड़ा सा मतलब कि करेक्ट होना स्टार्ट हो जाता है. अगर 100 रुपए का है, मान लो कि 1000 रुपीज का है, तो दैट विल कम 99.5 पे आ जाएगा या 995 पे आ जाएगा, मतलब कि थोड़ा सा करेक्ट होता है, ठीक है. तो देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल हु कमेंट ऑन दिस थिंग. वो बोलते हैं कि अगर हम डिविडेंड दे भी रहे हैं तो क्या हो रहा है, ठीक है, मतलब कि मार्केट प्राइस तो कम ही हो रहा है. बट मेन आइडियोलॉजी तुम्हारी मतलब कि डिविडेंड पेमेंट की है, इट शुड मैक्सिमाइज द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर और द करंट मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर. तो इसमें बेसिकली क्या है, आइडियली अगर कंपनी ने थोड़ा सा पैसा दिया है बाहर, ठीक है, तो एक थोड़ा सा नेगेटिव सेंटीमेंट भी आ जाता है मार्केट में, 0.01%, थोड़ा सा. कि मान लो अगर कंपनी को 100 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, या मान लो कि 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ एंड 1 रुपी द कंपनी गेव एज डिविडेंड, तो उसमें भी लोग सोचते हैं
उसने सिर्फ मान लो कि 1 रुपी क्यों दिया, 100 रुपीज एक्सपेंशन में लगा देते, 100 रुपीज एक्सपेंशन में लगा देते, तो थोड़ा सा लैक ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी कंसर्न या लैक ऑफ फ्यूचर प्रोजेक्शन की वजह से थोड़ा सा शेयर प्राइस होता है करेक्ट। ओके, सो दैट इज वन थिंग। एंड ऑल्सो अगर शेयर प्राइस करेक्ट हो रहा है बट लोगों को अपना डिविडेंड तो मिला ही है, 1 रुपए 2 रुपए, तो दैट गेट्स कॉम्पनसेटेड। सो आइडियली अगर शेयर प्राइस करेक्ट भी हो रहा है बट तुमको डिविडेंड भी तो मिल रहा है, अगर कैपिटल एप्रिसिएशन नीचे हो रहा है शेयर का, तो इन रिटर्न तुमको डिविडेंड भी मिल रहा है, सो दैट गेट्स कॉम्पनसेटेड। ठीक है, तो ये भी एक थ्योरी होती है, पीपल शुड नो अबाउट इट। एक और चीज, नाउ देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ कंपनीज who do not take debt, and those companies they rely on their internal accruals। ठीक है, अब मान लो अगर कंपनी को पैसा रेज करना है एंड कंपनी का कुछ भी लाइक एक्सपेंशन डाइवर्सिफिकेशन प्रोग्राम है, तो द फर्स्ट थिंग दैट द कंपनी गोज दे गो फॉर द रिटेन्ड अर्निंग्स, द सेकंड थिंग दे गो फॉर डेट, एंड थर्ड ऑप्शन दे गो फॉर इक्विटी बिकॉज डेट इज चीपर देन इक्विटी, बिकॉज यू गेट द टैक्स बेनिफिट्स एंड मैनेजमेंट में डिसिप्लिन आता है, एंड द इक्विटी इज कॉस्टली बिकॉज मार्केट में रेज करने का खर्चा एंड सब लाइक मान लो कि फ्लोटेशन कॉस्ट एंड ऑल दैट, एंड रिटेन्ड अर्निंग्स तुम्हारा एक सबसे चीप होता है बिकॉज तुम्हारा खुद का पैसा है, ठीक है, तुम उसमें लगा रहे हो। अब बहुत कंपनीज होती हैं मान लो कि डेट नहीं लेती हो, दे फोकस ऑन रिटेन्ड अर्निंग्स, एंड वाई दे आर नॉट टेकिंग डेट, because the retained earnings are sufficient, and this happens in mature companies because the internal accruals are strong enough to pay off, and ये सब mature companies में ज्यादा होता है। बट कुछ कंपनीज होती हैं वो डेट भी लेती हैं, एंड डेट कब तक ले सकते हैं, एंड वी टॉक्ड अबाउट दिस इन कैपिटल स्ट्रक्चर का चैप्टर, until your cost of equity is greater than cost of debt। तुम तब तक डेट ले सकते हो, एंड दैट वुड हैव अ मैग्नीफाइंग इफेक्ट ऑन ईपीएस, कंपनी का ईपीएस बढ़ेगा, कंपनी का ईपीएस बढ़ेगा, कीपिंग द ईबीआईटी कांस्टेंट। अगर हम चल रहे हैं तो तुम डेट और ले सकते हो कंपनी में। ओके, तो कंपनी का, एंड दिस थ्योरी लाइक आइडियली वी कॉल इट एज द पेकिंग ऑर्डर थ्योरी इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस, पेकिंग ऑर्डर थ्योरी। ठीक है, इसको हम पेकिंग ऑर्डर थ्योरी बोलते हैं इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस। ठीक है, तो अब इन सब सिचुएशंस पे भी डिपेंड करता है, मान लो कि अगर कंपनी मतलब कि डेट पे ही लाइक डिपेंडेंट है पूरे टाइम, तो शायद वो डिविडेंड ना दे, एंड कभी कभार डेट से भी डिविडेंड दे देती है। कंपनी सब कुछ अपना मान लो कि रिटेन्ड अर्निंग्स पे डिपेंडेंट है, तो शायद कंपनी शायद डिविडेंड दे ही ना। एंड इक्विटी से कंपनी पैसा ले रही है तो कंपनी के बहुत खर्चे वैसे ही आ जाएंगे, तो इन दैट केस द कंपनी माइट नॉट गिव डिविडेंड इन दैट केस एज वेल। दैट इज वन थिंग यू नीड टू कीप इनटू कंसिडरेशन। ठीक है, तो थोड़ा बहुत बेसिक था लाइक अबाउट डिविडेंड, and in the subsequent sessions like we'll be talking about like more about dividends and dividend policies as well। ठीक है, so this was all for today।